Welcome to my channel, guys. In my previous video we learned how to install a Visual Studio. In this video we will learn VB.NET Framework IDE. So let's start. What is VB.NET? Visual Basic.NET is an object-oriented computer programming language designed to create a wide range of Windows, web and mobile applications built on the .NET framework. Visual Basic.NET is an object-oriented programming language. Object-oriented programming language means in which we use objects that contains both data and functions. Okay, and is it designed to create a wide range of Windows, web and mobile applications and built on the .NET framework. It means वो .NET framework पे बनाई जाती है. Next is a application of VB.NET. The first application is console application. So what is console application? When an application accepts the input from console and project the output on the console. It means input and output कहाँ से ले रहे हैं हम? Console से. Okay. Then such type of applications are called console application. Next is Windows Form Applications. Windows Form Applications कौन सी होगी? जो GUI based होती है. Okay. तो Windows Form Application is GUI based application. Next one is the class library. Class library is a collection of class definitions contained in a .dll or exe file. Okay. And next is the Windows Control Library. What is the Windows Control Library? Windows Control Library means to create custom controls for using Windows Form. Okay. It means जब आई की वीडियोस पे देखेंगे तो उसमें हम कंट्रोल्स को हमारे फॉर्म में ऐड करते हैं. तो वो कंट्रोल्स क्या है? हम खुद भी बना सकते हैं. इट मीन्स वी क्रिएट अ कस्टम कंट्रोल्स. उन कंट्रोल्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज अ विंडोज सर्विसेज. विंडोज सर्विसेज क्या होती है? व्हाट इज अ विंडोज सर्विसेज? विंडोज सर्विसेज इज टू रन एन एप्लीकेशन इन द बैकग्राउंड. ओके. It manage a wide variety of functions like जैसे हो गया आपकी स्पीकर का साउंड हो गया, डेटा का बैकअप हो गया. ओके. तो ये सर्विसेज क्या है? ये बैक में रन होती रहती है. ओके. नेक्स्ट इज अ .NET वेबसाइट. .NET वेबसाइट मीन्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ओके. जो एग्जीक्यूट होती है किस पे? सर्वर पे. इट मीन्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूटेड ऑन अ वेब सर्वर and written using server-side scripting language like ASP, JSP, ASP.NET को हम इसके अंदर पढ़ेंगे .NET के अंदर. ओके. नेक्स्ट इज अ .NET वेब सर्विसेज. Web services is a communication platform between two different or same platform applications that allows to use their web method. Okay. You can say a web service is a software program that uses XML to exchange information with other software. Okay. Next is a WCF services, that is Windows Communication Foundation. Windows Communication Foundation क्या होता है? वो भी एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं एक सर्विस पॉइंट से दूसरे सर्विस पॉइंट तक. ओके. WCF is a framework for building service-oriented applications. Using WCF, we can send data as asynchronous message from one service and point to another. Next is the Silverlight applications. Microsoft Silverlight is an application framework for writing and running rich internet applications with features and purpose similar to those of Adobe Flash. Okay. And the next one is a workflow application. Next, Visual Studio 2019 IDE. IDE means Integrated Development Environment. Okay. So what is .NET Framework? .NET Framework is a software development platform that was introduced by Microsoft. It
consists of a various library of codes used by the client language like VB.NET कि .NET फ्रेमवर्क क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके अंदर वेरियस लाइब्रेरीज ऑफ कोड, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑफ कोड की, ओके, जो कि किसमें लिखी जाती है, VB.NET, C# या किसी में भी हम उनको यूज कर सकते हैं। It is a virtual machine that provide a common platform. Okay, common platform provide कराती है to run an application that was built using the different language such as C#, VB.NET, Visual Basic. Okay, or the all language use object-oriented methodology. Okay, and the last is it is also used to create a form-based, console-based, mobile and web-based application or services. अब अगर इन चारों पॉइंट को मिला के हमें सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन देनी है तो वी कैन से .NET framework is a platform that provides tools and technology to develop Windows, web and enterprises applications. Okay, next is a component of .NET framework. It is very important topic. Okay, so mainly .NET framework contain two components. First is a CLR and second is a framework class library. CLR is the common language runtime. ओके, एंड CLR के फंक्शंस होते हैं डिबग, एक्सेप्शन, GIT कंपाइलर, टाइप चेकिंग, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार बस ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले व्हेन एन एप्लीकेशन रन, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर कि .NET एप्लीकेशंस जो है, .NEट एप्लीकेशंस आर रिटर्न इन द VB, C++, C#, okay, in any VB, in any programming language. Okay, then code is compiled, कोड कंपाइल्ड हो गया, ओके, और जैसे कोड कंपाइल हुआ एक लैंग्वेज के अंदर वो कोड कंपाइल्ड होता है। ओके, तो हमने क्या किया कि .NET applications are written in VB, C++, C#, JavaScript in any in so .NET applications are written in VB, C#, JavaScript, C++, etc. Okay, then जब हमने कोड लिख दिया देन क्या होगा, कोड इज कंपाइल्ड इनटू अ लैंग्वेज दैट इज CIL। ओके, तो कोड कंपाइल होके एक लैंग्वेज में आ गया एंड जो कोड कंपाइल हुआ है वो एक पर्टिकुलर एक फाइल में स्टोर हो जाता है। ओके, अब कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, एंड स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाई अ सेट ऑफ रूल्स दैट सेटिस्फाई बाय ऑल लैंग्वेज कंपाइलर। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो इन सब कंपाइलर्स को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये उन रूल्स को स्पेसिफाई करता है जो इन सभी लैंग्वेज के कंपाइलर को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में फटाफट से देख लेते हैं। फिर है वेब सर्विसेज ASP.NET, अभी मैंने आपको बताया था कि विंडो वेब सर्विसेज के बारे में बताया था, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये वही चीज है। वेब फॉर्म अभी उसमें एप्लीकेशंस के अंदर मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वेब फॉर्म्स हो गए, वेब फॉर्म हो गए जैसे आप लोग कोई भी ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भरते हैं वो फॉर्म्स हो गए, ठीक है। विंडोज फॉर्म हो गए आपके सिंपल डेस्कटॉप टाइप की एप्लीकेशंस जो होती है उनके अंदर जो हम करते हैं, ठीक है।
और फिर आ गया डेटा एंड एक्सएमएल क्लासेस, जिसके अंदर एडीओ डॉट नेट आता है। डेटाबेस से कनेक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो वहां पे ये यूज होता है एडीओ डॉट नेट, एसक्यूएल। ओके, फिर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी और CLR। ओके, नाउ हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज a common language runtime, CLR। CLR is a component of the .NET framework to execute the different language program like C Sharp, Visual Basic, etc. ये क्या करता है, इसने क्या किया, यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के में काम आता है। CLR क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोग्राम को। ओके, और वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, VB में, C Sharp में, C++। Then CLR provide the service and runtime environment to the MSIL code. MSIL code is also called a MSIL code is also called a CIL code। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है किसको, MSIL कोड को। ठीक है, CLR also help to convert a source code, this is a source code, into bytecode and this is a bytecode। सोर्स कोड क्या होगा, यहाँ पे हमारा VB.NET C Sharp में जो हम लिख रहे हैं कोड, दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड। ओके, जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो ये क्या करता है, इसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं CIL या फिर MSIL। ओके, या फिर आप इसे कह सकते हैं बाइट कोड भी। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CLR also help to convert a source code into the byte code and this byte code is known as the CIL or MSIL। okay, after converting into a byte code, जब इसे byte code में कन्वर्ट कर देता है तो CLR is a JIT compiler। CLR क्या करता है, वो एक JIT compiler यूज करता है at run time। okay, that helps to help करता है to convert a MSIL और CIL code को किसमें, इनटू द मशीन और नेटिव कोड के अंदर। ओके, CLR ने पहले क्या किया, यहाँ से हमारा जो सोर्स कोड था उसे कन्वर्ट किया किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। ओके, देन रन टाइम में वो क्या करता है, रन टाइम में वो JIT का यूज करता है और हमारा जो MSIL CIL या बाइट कोड था उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड या नेटिव कोड। आप कुछ भी कह सकते हैं, मशीन कोड भी कह सकते हैं या नेटिव कोड भी कह सकते हैं। ओके, अब जो भी कोड CLR के अंडर आता है, जिस भी कोड को एग्जीक्यूट करा रहा है, वो कहलाता है मैनेज कोड। ओके, इसके अलावा CLR और भी इसकी सर्विसेज हैं, जैसे CLR प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शन, सिक्योरिटी एंड थ्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, ये टाइप सेफ्टी, गार्बेज कलेक्शन, ये हम अभी नीचे पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन आर एरर्स विच अकर व्हेन द एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज इफ एन एप्लीकेशन ट्राइज टू ओपन अ फाइल, अगर हमारी कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाह रही है ऑन द लोकल मशीन, ठीक है, बट द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, फाइल नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगर हमने इसे कोई कोड नहीं दिया तो एक एरर जनरेट करेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन, और इसे हैंडल करने के लिए ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है गार्बेज कलेक्शन के अंदर क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड रिसोर्सेज व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। लाइक अब एग्जांपल ले लीजिए, सपोज हमने डेटाबेस से कनेक्शन करा है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का, बट हम अब एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे, रोज फिनिश हो गई वो, तो वो क्या हुआ,
तो हमें उस डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें उस मेमोरी को रिलीज करना होगा, लेकिन डॉट नेट में ऐसा नहीं होता। गार्बेज कलेक्शन की एक फैसिलिटी होती है, गार्बेज कलेक्टर एक होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेमोरी को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि CLR क्या करता है, CLR कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड एट कंपाइल टाइम, ओके, एंड at runtime it uses a JIT compiler to convert a MSIL or bytecode into the machine code, okay, and suppose the application run होती है, when an application run, the CLR क्या करता है, CLR take the assembly and uses a JIT to turn into machine code, okay. So next is a CTS. Common type system describe the data types that can be used by managed code. ओके, मैनेज कोड क्या हो गया, जो CLR के अंडर में होता है वो हो गया हमारा मैनेज कोड। तो CTS describe the data type that can be used by managed code. CTS define how these data types are declared, used and managed in the runtime. It means data type को specify करना, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर होगा, उसे कैसे यूज करना है, मैनेज करना उसे, ये रन टाइम के अंदर ये सब कौन करता है, ये सब करता है CTS, ओके। इट मीन CTS किसके साथ डील करता है, डेटा टाइप्स के अंदर। Here we have a several language and each and every language has its own data type, okay. One language data type cannot be understandable by other language, but .NET Framework language can understand all the data type, okay. For example, C# के अंदर क्या होता है, we define data type as int, integer को हम int करते हैं, while in VB.NET we define integer as a data type, ओके। तो दोनों में डिफरेंट हो गया। C# को ये नहीं पता कि इंटीजर का क्या मीनिंग होगा, सेम VB डॉट को नहीं पता कि इंट का क्या मीनिंग होगा, बट .NET फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड ऑल द डेटा टाइप, ओके। इट मींस CTS क्या करता है, CTS डिस्क्राइब सेट ऑफ डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट .NET लैंग्वेज इन कॉमन, ओके। एंड CTR एंश्योर करता है, CTR एंश्योर दैट object written in different .NET language can interact with each other, okay. CTS के अंदर एक मेन चीज ये है कि CTS जो है 2 जनरल कैटेगरी के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। एक है वैल्यू टाइप और एक होता है रेफरेंस टाइप। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द CLS। इट इज अ सबसेट ऑफ CTS, ओके, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था, कॉमन टाइप सिस्टम that define a set of rules and regulations which should be followed by every language, that comes under the .NET framework, okay। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होती है, इन्हें हर लैंग्वेज जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज, जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर है, जितनी भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर लैंग्वेज है वो इन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, जो डिफाइन होते हैं CLS के अंदर, ओके। द CLS इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ लैंग्वेज फीचर्स सपोर्टेड बाय द CLR, ओके। Simply, it means when there is a situation to communicate object written in different .NET language, those objects must expose the features that are common to all the language. Okay. And CLS also help in cross-language inheritance. It means it ensures that product of compilers will work properly in .NET environment. Okay. Next is a garbage collector, automatic memory allocation. I have already told you what is a garbage collection. ठीक है, garbage collection is the process of removing unwanted
resources when they are no longer required. Okay, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर मैनेज द एलोकेशन एंड रिलीज ऑफ मेमोरी फॉर एन एप्लीकेशन एंड इट इज ऑटोमेटिक. देखिए आपने सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर कैलोक मैलोक इनको यूज किया होगा, तो आपने देखा होगा हम इन्हें यूज करते हैं, कॉल करते हैं, मेमोरी को रिलीज करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट. तो इसके अंदर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक होता है. और किसके थ्रू होता है? गार्बेज कलेक्टर के थ्रू. ओके, इट इज वन ऑफ द सर्विसेज that the common language runtime provide during managed execution. Okay, for developer this means that you do not have to write code to perform memory management task. memory management task related उनको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Automatic memory management can eliminate common problems such as forgetting to free an object and causing a memory leak, or attempting to access memory for an object that has already been free. Okay, next is a JIT compiler, that is just in time compiler. जस्ट इन टाइम कंपाइलर मैंने आपको पहले बताया था कि वो पहले फर्स्ट चीज कब यूज होता है? रन टाइम पे. ओके, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ द CLR which is responsible for managing the execution of .NET program. Okay, तो जब हम किसी भी प्रोग्राम के किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या क्या होता है? A language specific compiler convert the source code into the intermediate language, or you can say CIL language. Okay, this intermediate language is then converted into the machine code by the JIT compiler and at runtime. Okay, this machine code is specific to the computer environment that the JIT compile runs on. अब इसी चीज को अगर हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? वही मैंने वर्किंग ऑफ JIT कंपाइलर के अंदर लिखा है. The JIT compiler is required to speed up the code execution and provide support for multiple platforms. The JIT compiler converts the MSIL or CIL code into the machine code, and this is done before the MSIL or CIL can be executed. Okay, MSIL is converted into machine code on a requirement basis. देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. MSIL is converted into machine code on a requirement basis. इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि MSIL कोड वो पूरा कंपाइल है, जितना कोड हमने लिखा है वो पूरा कंपाइल होता है, तो वो MSIL कोड है. बट मुझे उसमें से कितना कोड रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस MSIL कोड में से केवल JIT उस कोड को लेके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. तो इससे क्या हुआ? टाइम बचा, राइट. तो देखिए, the JIT compiler compiles the MSIL code as required rather than the whole of it, right? The compiled MSIL or CIL is stored so that it is available for subsequent call if required. MSIL और DLL कोड जो है, MSIL और CIL कोड जो है वो स्टोर किया जाता है. ठीक है, इनकी एक असेंबली फाइल बनती है और जो ये असेंबली फाइल होती है उनका एक्सटेंशन होता है .dll और .exe. ओके, तो ये तो एक फाइल में सेव हो गए. बट उसके बाद मुझे जो जितना जितना कोड रिक्वायर्ड है केवल उतना ही JIT कंपाइलर क्या करता है? उतने ही पार्ट को कन्वर्ट करता है मशीन के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज अ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी से पहले मैं आपको एक बेस क्लास लाइब्रेरी बता देती हूँ. कई जगह इन दोनों टर्म्स को सेम भी कहा गया है और किसी जगह इसे अलग भी कहा गया है. बट होता क्या है? बेस क्लास लाइब्रेरी इज अ सब पार्ट ऑफ द FCL that provides library support to CLR to work properly. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो कॉमन होते हैं, जो हमारे कॉमन टास्क है उनसे रिलेटेड कोड है. अब FCL के अंदर क्या है? FCL होता है बेस क्लास लाइब्रेरी प्लस एडिशनल
libraries. Okay, तो देख लेते हैं. FCL is common for all type of application, यानी ये सारी applications के लिए common है. ठीक है. It means the way you access the library classes and method in VB.NET will be the same in C#. Okay, मतलब अगर आपने VB.NET के अंदर और C# के अंदर मेथड और क्लासेस को एक्सेस करा है तो दोनों का जो वे है एक्सेस करने का वो सेम होगा. राइट, दैट मीन्स वी जस्ट नीड टू इंपोर्ट द framework class library to our code, okay, and use its predefined method and property to implement common and complex functions like reading and writing to file, database instructions. Okay, हम क्या करते हैं इसके अंदर जो भी we just import the FCL. okay, हमारे कोड के अंदर FCL को import करते हैं और इसके predefined method और property को हम यूज करते हैं. ओके, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रीडिफाइंड मेथड है उसके अंदर कोई ना कोई कॉमन और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लिखे हुए होते हैं, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल, क्योंकि हम रीडिंग और राइटिंग का कोड नहीं लिखते, हम रीड और राइट कर सकते हैं. ठीक है. डेटाबेस इंटरेक्शन हो गया, हम डेटाबेस इंटरेक्ट कैसे कर रहा है वो हम नहीं देखते, हम सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, डेटा डालते हैं और एक्सेस करते हैं. ओके, चलिए इसे देख लेते हैं. .NET Framework Class Library is the collection of classes, namespaces, interfaces, and value type that are used for .NET application. Right? It contains thousands of classes that support the following function. अब कौन-कौन सी classes होती है इसके अंदर? Base and user defined data type, support for exception handling, IO and stream operations. ठीक है. देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ. इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम हो गया फाइल से रिलेटेड. ठीक है, फाइल से डेटा रीड करना, राइट करना, इनपुट आउटपुट. ओके, कम्युनिकेशन विद द अंडरलाइंग सिस्टम, एक्सेस टू डेटा, डेटाबेस को एक्सेस करने से रिलेटेड जो है वो सारी इसके अंदर क्लासेस होंगी. एबिलिटी टू क्रिएट विंडोज बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन, जो भी विंडोज बेस्ड जीयूआई था, जैसे हमने देखिए इसमें हम जैसे फॉर्म बनाएंगे तो बटन वगैरह यूज करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बटन को एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्ट, हमें भी नहीं पता उसके पीछे बैक में क्या वर्किंग है. ठीक है, हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बटन क्लास तो ऑलरेडी बनी हुई है किसके अंदर, FCL के अंदर. ओके, तो विंडो बेस हो गई. एबिलिटी टू क्रिएट वेब क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन, ASP.NET रिलेटेड जितने भी. सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज. ओके, तो मेनली FCL क्या हो गया, FCL उन इन सब क्लासेस का कलेक्शन होगा. तो यहाँ पे क्या है, क्लासेस का कलेक्शन, इसलिए इन्होंने कह दिया क्लास लाइब्रेरी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन कमेंट, and if you like my video then please like and share and don't forget to subscribe for more updates. Okay guys, bye bye.